کرسی پر نماز پڑھنے والے سن لیں، یہ 4 احکام پورے نہ کیے تو گنہگار ہوں گے۔ آج کل مساجد میں ایک بہت اہم مسئلہ عام ہو چکا ہے، لیکن افسوس کہ اکثر لوگ اس کی باریکیوں سے ناواقف ہیں۔ کرسی پر نماز پڑھنا اگرچہ مجبوری کی حالت میں جائز ہے، مگر اس کے بھی کچھ اصول اور آداب ہیں جن کو نظر انداز کرنا معمولی بات نہیں بلکہ گناہ کا سبب بن سکتا ہے۔ بہت سے لوگ انجانے میں ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جو نہ صرف ان کی اپنی نماز کو متاثر کرتی ہے بلکہ پوری صف کے نظم کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ اگر آپ یا آپ کے گھر میں سے کوئی فرد کرسی پر نماز پڑھتا ہے تو یہ معلومات آپ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ 4 بنیادی احکام بتائیں گے جن پر عمل کرنا ہر کرسی پر نماز پڑھنے والے کے لیے لازمی ہے، لہٰذا آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ کہیں لا علمی میں آپ بھی کسی بڑی غلطی کا شکار نہ ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز اسلام کا وہ عظیم رکن ہے جو بندے کو اپنے رب کے ساتھ جوڑتا ہے، اسے روحانی سکون عطا کرتا ہے اور اس کی زندگی کو نظم و ضبط کا حسین مجموعہ بنا دیتا ہے۔ نماز صرف چند الفاظ اور حرکات کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی، محبت اور بندگی کا مکمل اظہار ہے۔ جب ایک مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ دنیا کے تمام کاموں سے الگ ہو کر اپنے خالق کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جو دن میں 5 مرتبہ انسان کو اللہ کی یاد دلاتی ہے اور اسے برائیوں سے روکتی ہے۔ اسلام میں نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وہ واحد عبادت ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسے ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے، یعنی جس طرح ستون کے بغیر عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی، اسی طرح نماز کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی سنور جائیں گے اور اگر اس میں کمی رہ گئی تو باقی اعمال بھی خطرے میں پڑ جائیں گے۔ نماز ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے، عاجزی سکھاتی ہے اور اللہ کے سامنے جھکنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ یہ انسان کے دل کو نرم کرتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے اور اسے نیکی کی طرف مائل کرتی ہے۔ ایک سچا مسلمان کبھی نماز کو معمولی نہیں سمجھتا بلکہ اسے اپنی زندگی کا سب سے اہم حصہ بناتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ نماز کو کیسے پڑھا جائے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ نماز کی ادائیگی میں نیت، قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ سب شامل ہے اور ہر ایک کا اپنا ایک خاص طریقہ ہے۔ نماز میں خشوع یعنی دل کی حاضری بہت ضروری ہے۔ صرف جسم کا جھکنا کافی نہیں ہوتا بلکہ دل کا جھکنا بھی ضروری ہے۔ جب بندہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دنیا کے تمام خیالات کو پیچھے چھوڑ دے اور مکمل توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نماز کے حوالے سے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس قدر خشوع اختیار کر فرماتے کہ گویا آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، آپ لمبے قیام فرماتے، رکوع اور سجدہ نہایت اطمینان کے ساتھ ادا کرتے۔ آپ نے ہمیں سکھایا کہ نماز جلدی جلدی نہیں بلکہ سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا صحیح طریقہ اختیار کرنا کتنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ ایک جامع ہدایت ہے کہ ہمیں اپنی نماز کو سنت نبوی کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صفوف کو
सीधा रखने, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने और नज्म व ज़ब्त के साथ नमाज अदा करने की तलकीन फरमाई है। अल्लाह ताला ने भी यही हुक्म दिया है कि नमाज को कायम करो, यानी उसे सही तरीका से मुकम्मल एहतमाम के साथ अदा करो। सिर्फ नमाज पढ़ लेना काफी नहीं, बल्कि उसे दुरुस्त तरीके से अदा करना जरूरी है। हमें चाहिए कि हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें और उनके तरीके को अपनाएं और उसी अंदाज में नमाज पढ़ने की कोशिश करें जैसा कि उन्होंने हमें सिखाया। लेकिन इंसान की जिंदगी में कभी कभी ऐसे हालात भी आते हैं जब वह मुकम्मल तौर पर खड़े होकर या जमीन पर सजदा करके नमाज अदा नहीं कर सकता। बीमारी या बुढ़ापा, जिस्मानी कमजोरी या किसी और उज्र की वजह से कुछ लोग जमीन पर बैठने या सजदा करने से आजिज होते हैं। इस्लाम एक आसान दीन है और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बोझ नहीं डालता, इसलिए शरीयत में ऐसे लोगों के लिए आसानी रख दी गई है। अगर कोई शख्स खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो वह बैठ कर नमाज पढ़ सकता है, और अगर जमीन पर बैठकर भी मुमकिन ना हो तो वो कुर्सी या किसी जगह पर बैठकर नमाज अदा कर सकता है। यह अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। उसने अपने बंदों को उसकी इस्तिताअत के मुताबिक इबादत करने की इजाजत दी है, लेकिन ये इजाजत सिर्फ मजबूरी की हालत में है, ना कि सहूलत और आराम की खातिर। वह लोग जो शदीद बीमारी में मुब्तला हैं, कहीं कमर, टांगों या जोड़ों का मसला है, जो जमीन पर बैठने से कासिर हूं या जिन्हें सजदा करने में शदीद तकलीफ हो, ऐसे अफराद कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। इसी तरह वो बुजुर्ग हजरात जो कमजोरी की वजह से जमीन पर नहीं बैठ सकते या जिन्हें डॉक्टर ने झुकने से मना किया हो, तो वो भी इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की यह है कि कुर्सी पर नमाज पढ़ना अगरचे जायज है, मगर उसके भी कुछ उसूल हैं और आदाब हैं जिनकी पाबंदी करना जरूरी है। ये नहीं कि जिस तरह दिल चाहा वैसे ही कुर्सी रख ली और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। अगर उन उसूलों को नजरअंदाज किया जाए तो इंसान गुनाह का मुर्तकिब भी हो सकता है। अब बात करते हैं बाकायदा तौर पर कुर्सी पर नमाज अदा करने के मुकम्मल और बेहतरीन तरीके की। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर अक्सर लोग लाइल्मी की वजह से गलतियां कर बैठते हैं। बाज लोग सफ से हटकर नमाज पढ़ते हैं, कुछ लोग कुर्सी की जगह का सही ख्याल नहीं रखते और कुछ नमाज के तरीके में गलती करते हैं। उन तमाम बातों को समझना और दुरुस्त करना निहायत जरूरी है। प्यारे नाजरीन, जो भी शख्स कुर्सी पर नमाज बैठकर अदा करेगा उसके लिए लाजिम है कि वह 4 अहम अहकाम को जरूर पूरा करे। ये अहकाम ऐसे हैं जिन पर अमल किए बगैर नमाज का सही तरीका मुकम्मल नहीं होता। अगर कोई शख्स उन अहकाम को नजरअंदाज करता है तो वह गुनहगार हो सकता है, चाहे वह लाइल्मी में ही क्यों ना हो। लिहाजा हर उस शख्स के लिए जो कुर्सी पर नमाज पढ़ता है, ये जरूरी है कि वो उन अहकाम को समझे, उन पर अमल करे और अपनी नमाज को दुरुस्त बनाए, क्योंकि नमाज हमारी आखिरत की कामयाबी का जरिया है और उसमें मामूली सी गफलत भी बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। अब आगे हम उन 4 अहकामों को तफसील के साथ बयान करेंगे ताकि हर सुनने वाला आसानी के साथ समझ सके और अपनी नमाज को बेहतर बना सके। प्यारे नाजरीन, अगर किसी शख्स के लिए कुर्सी पर नमाज पढ़ना जायज है और उसने उलमा से बाकायदा मशवरा भी कर लिया है कि उसके लिए कुर्सी पर नमाज पढ़ना दुरुस्त है, तो अब ये जानना जरूरी है कि वो कुर्सी कहाँ रखेगा। उसके लिए लाजिम है कि जहां तक सफ मुकम्मल हो चुकी है वो फौरन उसके बाद अपनी कुर्सी रखे। ये जो गलतियां अक्सर मसाजिद में देखने में आती है कि कुर्सियां एक कोने में पड़ी होती हैं और सफ़े यहां तक आ रही हैं, यानी आधी हैं, जबकि कुर्सियां पीछे रखी होती हैं और ये दुरुस्त नहीं। याद रखें, अगर कुर्सियां यहाँ रखी है यानी नमाजी के साथ ही रखी है और नमाजी अभी यहाँ तक पहुंचे हैं, यानी ये सारी सफ भर चुकी हैं, तो उसके आगे जहां जगह खाली है लेकिन कुर्सी वाला शख्स आकर पीछे कुर्सी रखकर नमाज पढ़ता है तो उसका ये अमल गुनाह होगा, बल्कि मकरूह तहरीमी होगा, क्योंकि उसने
उतनी सफ की खाली जगह छोड़ दी और सफ को तोड़ने का सबब बना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सफ को तोड़ता है अल्लाह ताला उसे तोड़ देता है। ये बहुत सख्त वईद है, लिहाजा कुर्सी पर नमाज पढ़ने वालों पर भी लाजिम है कि जब सफ यहां तक मुकम्मल हो जाए तो वो अपनी कुर्सी उठाकर वहीं ले जाए और सफ के साथ शामिल होकर नमाज अदा करें। उन्हें भी सफ तोड़ने की इजाजत नहीं। ये पहली बात हो गई कि कुर्सी कहाँ रखनी है। दूसरी बात यह है कि कुर्सी कैसे रखनी है। मिसाल के तौर पर सफ की एक सीधी लाइन है, लोग उसमें खड़े हैं, तो जहां नमाजियों की एरिया है वहां कुर्सी के पिछले पाए होने चाहिए, बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए, यानी जहां लोगों की एरिया और पंजे आ रहे हूं उस सीध में कुर्सी के पिछले पांव हूं और अगले पाए आगे की तरफ हूं, ताकि पूरी सफ सीधी और मुनज्जम नजर आए, चाहे उसमें कुर्सी वाला नमाजी भी शामिल हो। तीसरी बात यह है कि कुर्सी पर नमाज कैसे पढ़नी है। बाज लोग यहाँ भी गलती करते हैं, एक तो कुर्सी कोने में रख देते हैं और बीच में जगह खाली छोड़कर गुनाह के मुर्तकिब होते हैं, और दूसरा यह है कि अगर वो सजदा नहीं कर सकते तो उसके बावजूद भी कुर्सी के आगे खड़े हो जाते हैं। ये भी एक बड़ी गलती है, क्योंकि सफ के वाजिबात में से एक ये है कि सफ बिल्कुल सीधी और बराबर हो। सब नमाजियों की गर्दनें, कंधे, टुकने एक लाइन में होनी चाहिए। लेकिन जब कोई शख्स कुर्सी रखकर उसके आगे खड़ा हो जाता है तो वो पूरी सफ के नज्म और तरतीब को खराब कर देता है, जो कि नाजायज है। अगर आप सजदा नहीं कर सकते तो आपके लिए खड़े होकर नमाज पढ़ना माफ है, बल्कि ऐसी सूरत में बैठकर नमाज पढ़ना अफजल है। लेकिन आपको कुर्सी के आगे खड़ा होने की जरूरत नहीं, बल्कि कुर्सी पर बैठकर ही नमाज अदा करें, ताकि आपका जिस्म बाकी नमाजियों के बराबर हो और सफ की सीध मुतासिर ना हो। बैठकर नमाज इस तरह अदा करें कि रुकू के लिए थोड़ा झुकें और सजदे के लिए रुकू से ज्यादा झुकें, जितनी आप में ताकत हो। इसी तरह आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। कुर्सी के आगे खड़ा होना जरूरी नहीं, बल्कि उससे सफ का नज्म भी खराब होता है और उस वजह से आदमी गुनहगार भी हो सकता है। इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए। चौथी बात यह है कि आजकल एक नई जहालत पैदा हो गई है कि कुर्सी के आगे एक तख्ता लगा होता है, उस पर हाथ रखकर सजदा किया जाता है, हालांकि उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। जब आप जमीन पर सजदा नहीं कर सकते तो सजदा वहीं ही माफ हो जाता है और आपने इशारे से सजदा करना होता है। इसलिए किसी तख्ते की कोई हाजत नहीं। अगर सिर्फ सजदा करने के लिए इजाफी पैसे खर्च करके ऐसी कुर्सियां बनवाई जाती हैं तो ये पैसे का जिया है, और अगर मस्जिद के चंदे से ये काम किया जाता है तो ये और भी गलत है, क्योंकि ये चंदे का गलत इस्तेमाल है। उसकी कोई शरई जरूरत नहीं, उसके बगैर भी नमाज सही हो जाती है। तो फिर ये तख्ता लगाने की क्या जरूरत है। अलबत्ता अगर ये तख्ता कुरान पाक या कुरान पढ़ने की नीयत से लगाया जाए तो फिर उसकी गुंजाइश है, लेकिन सिर्फ सजदा करने के लिए उसे बनाना दुरुस्त नहीं। उसके लिए मसाजिद में सादा और आम कुर्सियां होनी चाहिए, जिनमें बैठकर आसानी से नमाज अदा की जा सके। लिहाजा कुर्सी पर नमाज पढ़ने वाले हजरात उन चारों बातों को अच्छी तरह जहन में रखें, ताकि उनकी नमाज भी दुरुस्त हो और वो सफ के नज्म ज़ब्त को भी बरकरार रख सकें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें पंजगाना नमाज की पाबंदी करने की सच्ची तौफीक अता फरमाए, हमारी नमाजों में खुशू व खुजू पैदा करे, हमें दिल की हाजिरी के साथ अपने हुजूर खड़े होने वाला बना दे और हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। या अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, हमारे जाहिर व बातिन को सवार दे, हमारे घरों से हर किस्म की परेशानी, तंगी और बेसुकूनी को दूर फरमा, हमारे घरों में सुकून, मोहब्बत, रहमत और बरकतें नाजिल फरमा, आपस के रिश्तों में प्यार पैदा फरमा और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमा। या रब हमें हमारी कोताहियों को माफ फरमा, हमें सीधे रास्ते पर चलने वाला बना दे और हमें उन लोगों में शामिल फरमा दे जो तेरी रजा के लिए जीते हैं और तेरी ही रजा के लिए इबादत करते हैं।
پیارے ناظرین یہ ویڈیو نہایت اہم اور معلومات سے بھرپور ہے، اس لیے اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہر گھر میں بزرگ موجود ہوتے ہیں اور اکثر گھروں میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد ضرور ہوتا ہے جو مجبوری کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے۔ اگر یہ معلومات ان تک نہ پہنچے تو وہ لا علمی میں ایسی ہی غلطیاں کر سکتے ہیں جو ان کی نماز کو متاثر کر دے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں، خواتین اور جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہر وہ شخص جو کرسی پر نماز پڑھتا ہے صحیح طریقہ سیکھ سکے اور اپنی نماز کو بہتر بنا سکے۔ یاد رکھیں، دین کی صحیح بات کو آگے پہنچانا بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے کسی کی نماز درست ہو جائے اور اس کا اجر آپ کے نام اعمال میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین یا رب العالمین۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کے لیے جزاک اللہ۔